के सहगल सर ने कि उन्होंने बोला था कि ओपीएम में होता है कि बढ़ गई, इसमें होता है कि बढ़ ना जाए। इसमें जो होता है हायोसेम्स में कि कहीं जहां है ठीक है, इससे आगे ना नुकसान कर दे, इससे आगे ना बढ़ जाए। तो यही वर्डिंग उसकी मैं नोट करता रहा लेडी की, कि जहीं रह जाए नोज पे ट्यूमर, आगे ना बढ़ जाए, मेरे को यही डर है। तो फिर मैंने उसको हायोसेम्स 0/1 वन डोज दी, 50 मिलीसीमल वन डोज दी, और दैट लेडी विद इन 15 days दैट ट्यूमर शेड ऑफ। Previously, Hyosems was given 36, 201 m, 10 m, but after 50 millisievert single dose, that was shut off. That was my first case of 50 millisievert single dose. It means that 50 millisievert works better than centesimal scales, sir. Definitely, starting में नहीं कभी देखिए अच्छे रिजल्ट मिले हों, पर लेटर ऑन जब ये पोटेंसी से एग्जॉस्ट कर ली, फिर उसका वंडरफुल रिजल्ट है। अब स्टार्टिंग में भी देना शुरू करेंगे। तो सर ये इसका रूब्रिक फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस लिया ना, फियर बी ट्रेड हायोसेम्स दी ना उसको, तो लाइट शन, हाँ लाइट शन था उसमें, वो नहीं कराना चाहती थी टेस्ट उसका बायोप्सी। ठीक है। हाँ, तो जो हमारे गुरु जिनको मैं कहता हूँ ना कि इतना नॉलेज थी उनको, साइकाट्रिस्ट होंगे होम्योपैथी की, और हबी को होम्योपैथी देते थे, उनके पास हर मेडिसिन 0/1 to 0/6 थी, 0/2, 0/3, 0/4, 5, 6। वो हर पेशेंट को जब साइकाट्रिस्ट से मेंटली सिक पेशेंट जब कंट्रोल आ जाता था, तो उसको होम्योपैथी पे कन्वर्ट कर लेते थे। तो उनको सभी को स्टार्टिंग से 50 मिलीसीमल देते थे वो। Wow, very nice. So nice, Man sir. Every time you give us something very new, and every time we feel that something new is still there, coming, and if it is coming from such a great and senior homeopath like you, who is so humble, he shares everything without keeping anything with him. Such selfless sharing is always I have seen with so much. You always appreciate too much. Sir, you are my big brother. I always call you my big brother. Sir, I look up to you for many things. I am very fond of you about community. I am very fond of you about your social work. And I am very fond of you about your nature. All these things, I have never seen you, I have never seen you haughty. I have never seen you angry. Always I have seen you happy, smiling, answering every question, even if the question is asked repeatedly in every lecture. You answer that fellow, sir. That is something I learned from you, and I'm great. Now we are learning from you. Now we are learning from you. That is okay, sir. That is okay because we are little fresher than you, so our brain is little more in tune with the latest things. Otherwise, sir, there are things which I learned from you, and I keep with me. Always, I keep with me. Like I have also used single dose of LN potency since you had told in the last lecture. I have also started using single dose, and in more than half of the cases, I am getting very good results with single dose of LN potency. Only problem in using single dose is, only thing it doesn't work in single dose where the patient is a tobacco chewer, or if he's smoking, or if he's a drinker. Then that what is it called? Obstacles to cure comes. That is where we repeat. Otherwise, single dose is always ill. Especially in children, it works best. In females, it works best because females do not indulge in alcohol and smoking and drinking. So it works very, very, very well in any case that I've seen. Even during menses, after 5 days, I give, if the discharge is more, like Dr. Ariman has said, not to give medicine during menses, but after 5th day you give, it works very well. I've seen that. Thank you, sir. Dr. Mansi will I am giving in all cases, in surgical cases, in mental cases, in all cases, single dose, maybe 30, 50 millisievert. Yes. Yeah, surgical cases also, sir. Very much, yeah. Very much.
तो शुरू Yes, करें Dr. आज Mansi सर का, is. मास्टर का हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो है। हाँ सर। हाँ जी जी, आज ये एनिवर्सरी है हमारी ब्रेकफास्ट। मानसी बेटा, ओवर टू यू। डॉक्टर मानसी विल इंट्रोड्यूस यू सर बिकॉज टुडे। यस डॉक्टर मानसी बेटा। Yes, sir. Hello, everyone. A very good afternoon to everyone. Thank you for joining on behalf of Ignited Minds by PHF. And we are here to give homage to our Guru, our Master, Dr. Samuel Hahnemann. So, उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है और इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मान सर ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और वो आए यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच सर। सर की इंट्रोडक्शन तो बहुत लंबी है, सर को हम सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर भी चाहूंगी कि कुछ चीजें हैं जो बतानी जरूरी है सर के बारे में। तो सर तो मेडिकल ब्रीफ में। ऑफिसर रहे हैं। जी सर। सर मेडिकल ऑफिसर रहे हैं, ऑथर रहे हैं और एंटी एडिक्शन भी उनका काम चलता है। एज ए सोशल वर्कर वो बहुत सारा किसानों के लिए भी चलता रहता है, उनका काम सोशली भी बहुत एक्टिव है सर। और क्या कहूँ सर के बारे में सर तो सीनियर मोस्ट होम्योपैथ है अपने और लीजेंड बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे अभी लियाकत सर ने भी बोला, उनकी सिंप्लिसिटी और हम्बलनेस बहुत मतलब क्या बोलूं मैं नो वर्ड्स सर, नो वर्ड्स फॉर यू सर। Thank you for coming and thank you everyone. So just we will listen to sir and keep your videos as well as Thanks. audios on mute so that we can listen and grasp every moment of this session. So over to you sir. Thank you. This today's lecture is from Ignited Minds by PHF and ASRH. Please remember, it is from both the uh, groups. Sir, over to you, please. ओके। डॉक्टर नमोले लियाकत सर, Dr. Manshi Patel and all other doctors, seniors and juniors, I welcome you all. इतनी वंडरफुल साइंस दी है ना डॉक्टर सैमुअल हैनेमन सर ने, पर मास्टर ने, कि बहुत सैल्यूट करने को दिल करता है रिपीटेडली, कि कैसे वो एंटीबायोटिक्स देते हैं, स्टीरॉयड्स देते हैं, एलोपैथी साइड मॉडर्न साइंस कहलाते हैं, और कैसे हम सिंगल डोज से ठीक कर सकते हैं, कर देते हैं। ये एक सेपरेट बात है कि हम बोल नहीं सकते पब्लिकली कि आपको पीएल खिला रहे हैं, नहीं तो वो हमें पीट देंगे फड़ के, पेशेंट्स है जो, कि आप तो हमें खाली गोलियां देते रहते हैं एक डोज दे के, ना ही फिर हमारे डॉक्टर पेमेंट ले सकेंगे। नहीं तो अगर इसको वंडरफुल साइंस है और इतनी साइंटिफिक है, जो नीड है इसकी के एक्सप्लेनेशन की अभी जरूरत है कि हाउ इट वर्क्स, दैट शुड बी वी शुड कीप ओपन, someday some scientist will explain that part, but जो वंडरफुल साइंस दी है, गवर्नमेंट पैट्रोनाइजेशन नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि गवर्नमेंट पैट्रोनाइजेशन नहीं है, ना स्टेट्स में ना सेंटर में, जितना होना चाहिए होम्योपैथी को। और इतने कम बजट में होम्योपैथी पब्लिक को हेल्थ फैसिलिटीज दे सकती हैं कि बहुत ज़्यादा, जैसे 1000 की 10,000 टाइम्स लेस एक्सपेंडिचर से, और क्योर करती हैं। ऐसे नहीं कि सुप्रेस करती हैं। बेशको मेंटल डिजीजेज हैं, स्किन डिजीजेज हैं, रोमेटिक डिजीजेज हैं, जो भी है सर्जिकल डिजीजेज हैं, सो मेनी सर्जिकल डिजीज वी नो दैट होम्योपैथी क्योर्स विद सिंगल डोज। That is a wonderful science. We salute our master. Then we salute our master, Dr. M.L. Sehgal, who gave us a new revolutionized homeopathy, really revolutionized homeopathy. They made the dead rubrics alive. They nothing definite मुश्किल से 10-15 rubrics दिए होंगे उन्होंने, नहीं तो सारी मेन सेक्शन में डेड पड़े हुए थे, वो रुब्रिक उन्होंने लाइव कर दिए, इतना किया है।
जैसे पहला केस उनका था कि एक पेशेंट को फीवर था और वो फीवर नहीं जा रहा था उसका, तो उन्होंने उसको एडमिट कर लिया, घर में ही रख लिया उसको ऑब्जर्व करने के लिए। थर्ड आई थी सर की, डॉक्टर एम.एल. सहगल की। बेशक क्वालिफाइड होम्योपैथ नहीं थे, पर इतनी इंटेलिजेंसी थी उनमें कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन के लिए घर में रखा। वो लेटा रहता था पेशेंट, कोई शिकायत नहीं करता था। अगर वो पूछते थे क्या हाल है, कहते थे मैं ठीक हूं। तो उनको सट्राई कर गया जे रूब्रिक के वेड डिजायर बेड रिमेन इन डिजायर टू इनडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट वेल सेज ही इज वेन वेरी सिक, कि बहुत बीमार है फिर भी कहता है कि मैं ठीक हूं और कोई शिकायत नहीं करता। और जहां से इसका रेवोल्यूशनरी होम्योपैथी का आगाज शुरू हुआ हायोसैम्स से, सर ने मास्टर और डॉक्टर एम.एल. सहगल ने हायोसैम्स दी और वो केस ठीक हो गया। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कितना ही वर्क करते रहे, कितना ही और मेडिसिन कैसे किंग पिन निकाल के दिए, की नोट्स निकाल के दिए। हमारी लक है कि हम उनके साथ रह सके हैं। उनको ओरिजिनली मास्टर को दिल्ली में भी और पंजाब में संगरूर में भी बार बार हम सुन सके उनको। मोस्टली हमारे घर ही ठहरते थे वो, तो इसका हमें बहुत हम खुशकिस्मत मानते हैं अपने आप को कि उनके साथ हमें रहने का मौका मिला। और डांटते रहते थे कि अगर रिपीटेडली डोज देंगे तो गलत है, बहुत डांट पड़ती हमें, और रिपीट नहीं करना जल्दी जल्दी। तो ना ही एक से डोज से ज़्यादा डोज देंगे, ना रिपीट करेंगे। इसीलिए हमें कॉन्फिडेंस बना कि हाँ सिंगल डोज ही देना है। मैक्सिमम कुछ हमारे प्रैक्टिशनर हैं, फाउंडर ASR के 3 डोज दे देते हैं 15 मिनट्स इंटरवल पे, इससे ज़्यादा नहीं है। ऐसे नहीं कि डेली रिपीट करेंगे। तो मैं कभी भी नहीं दिया, क्योंकि मैं लकी था कि मैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में अपॉइंटेड था। वहाँ पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट बहुत थे, 150 200 भी OPD हो जाती थी। तो जहाँ डिस्पेंसर पॉसिबल ही नहीं था कि इतने पेशेंट को 3 डोजेज बना पाता, तो मैं उसको बोला कि आपने एक ही डोज देनी। तो उससे इतने वंडरफुल रिजल्ट मिले। और जितनी हायोसैम्स मैंने यूज की है, नहीं यूज की हुई किसी को, जितने भी एक्यूट केसेस थे, खास करके फीवर केसेस थे, उनमें इतना काम करती थी। बेशक मोस्ट कॉमन है कि हर पेशेंट ही लेटा रहेगा बुखार में। ये कहते हैं कि बहुत सारे कहते हैं कि ऐसे क्यों रूब्रिक लेते हैं आप, जे बेडेड या टू रिमेन, जब दी है उसमें our master has given us a new principle, prescribe on most common language of patient। ये भी आपको बहुत बहुत गहरे से समझना होगा कि इसका बेसिक है जो डॉक्टर एम.एल. सहगल थ्योरी का, कि प्रेस्क्राइब ऑन मोस्ट कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट बाय कन्वर्टिंग दैट इनटू माइंड रूब्रिक्स। तो पेशेंट लेटा रहता है, बहुत सारे पेशेंट होते थे, रश होता था कि सर मैं तो बाहर भी लेटा हुआ था आपकी डिस्पेंसरी में, और कंप्लेंट कोई नहीं करता। मैं हायोसैम्स 30 डोज देता था। वो कहता था कि गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी थी, मेरी शिफ्ट करवाई थी वहां, कहते मैं पिछले बैक साइड थी, तो कहता मैं गेट पे जाता जाते ही मेरे को ये ठीक हो गया था, जो फीलिंग आ रही थी कि लेटर हूं मैं। जहाँ किसी को वीकनेस है बहुत ज्यादा, अब आते हैं कि थकावट है, फटीग है, वीकनेस है, लेटे रहने को दिल करता है, कोई भी डिजीज हो, डिजीज डज नॉट मैटर, इनडिफरेंट कंप्लेन नॉट, के कंप्लेंट नहीं करना। तो हायोसैम्स इतना वंडरफुल रिजल्ट देती है हमें, इतना वंडरफुल। आप क्यूट में अप्लाई करके देखें, कभी मैं रिपीट नहीं करता। क्यूट में भी सिंगल डोज सी देते, तो उसको 24 आवर्स वेट करते हैं, अगर ना ठीक हुआ तो 6 दे देते हैं 1 डोज। तो ऐसी इसका जो नियर बाई DD है हायोसैम्स का, वो हम करते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम से। अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी है बेडेड या टू रिमेन इन, लेटे रहना, पर उसमें बहुत सारा ऑपोजिट है, लिमेंटिंग, कंप्लेनिंग, फेनिंग, वो पार्ट बहुत है अर्जेंटम नाइट्रिकम का। अगर 80% केसेज को हायोसैम्स ठीक करती है, तो 20% केसेज में अर्जेंटम नाइट्रिकम भी आ जाती है कि लिमेंटिंग, कंप्लेनिंग है, बेडेड या टू रिमेन है। तो इतने ये मेडिसिन दो ने इतने रिजल्ट दिए हैं ना कि मैं बहुत सैल्यूट करता हूँ बार बार सर को। कि मैंने पहले 1980 में DHMS पास की, मैं उसी
वोहर कॉलेज में डेमॉन्स्ट्रेटर रहा, लेक्चरर रहा। बाय द वे जो भी है, मैं फर्स्ट आता था एवरी ईयर 4 ईयर DHMS में। फाइनल ईयर में सेकंड आया था, सिल्वर मेडलिस्ट था पंजाब में। तो मेरे प्रिंसिपल जो थे सर, वो बहुत मेरे रिजल्ट प्यार था उनका। तो उन्होंने उसी समय जब मैं डेमॉन्स्ट्रेटर था तो आउटडोर प्लस इंडोर हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दिया था मेरे को। तो वहाँ हम एडमिट करके रखते ही थे पेशेंट, और डेली जैसे दूसरे हॉस्पिटल में होता है कि मॉर्निंग इवनिंग राउंड लगाना, प्रॉपर उनकी हिस्ट्री मेंटेन करनी। पर फ्रॉम 1980 टू 1992 12 years I was prescribing 30 TDS, even 201 TDS, never had a faith to give a single dose, and very much difficult to reach single medicine. Sometimes 2 medicines mixed repeatedly, BD, TDS, but getting good results. But पता नहीं कैसे था कि OPD मेरे पास वहाँ भी थी, अबोहर में थी, 100-150 पेशेंट थे, इंडोर रखते थे 10-12 पेशेंट्स। ऐसी फिर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में आ गए 84 में, तो वहाँ जहाँ भी मैं रहा ऐसे ही। एक बार फतेहगढ़ छन्ना गांव था, वहां भी, वहां भवानीगढ़ सिटी था, नजदीक समाना था। भवानीगढ़ और समाना से वहां उस गांव में पेशेंट आते थे। मेरे में एक बात रही है कि ABC, एक डॉक्टर ने बोला था कि ABC जिसमें होगा वो सफल होगा ही। आप भी ऐसी करें प्लीज, ABC को नोट करें। ए अवेलेबिलिटी, तो मैं अवेलेबल हमेशा होता था गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में, ऐसी कभी नहीं किया था कि फरलो मारनी है। बेशक मैं लेट चला जाऊं, 2 घंटे लेट चला जाऊं, 3 घंटे लेट चला जाऊं, मेरे पेशेंट्स को फेथ था कि डॉक्टर मान अवेलेबल होंगे ही होंगे। तो ये बात मेरे को पेशेंट बहुत रश रहता था, अवेलेबिलिटी। सेकंड बी बिहेवियर हमेशा ही अच्छा रखा है पेशेंट के साथ। पता है कि वो पेशेंट है, वो कुछ भी बोल सकता है, कैसे भी कर सकता है। सी कॉम्पिटेंसी 3rd नंबर पे थी, तो वो चलो बाय द वे थी ही। स्टडी में ऐसे रहे थे इंटेलिजेंट, क्योंकि पहले मैंने डी फार्मेसी की मेडिकल कॉलेज पटियाला से, और उसके बाद फिर मैं सर्विस उसकी की 1 साल, और सर्विस छोड़ के फिर DHMS की थी। तो ABC आपके पास अगर आप में होगी जे ABC, तो आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। तो मैं बोल रहा था कि वहाँ सक्सेसफुल पहले भी थे, पर पहले मिक्स करके देते थे, TDS देते थे। आफ्टर साइकिल सिस्टम ओनली आई एम द प्रेस्क्राइबर ऑफ सिंगल मेडिसिन, सिंगल डोज। ऐसे ही चलते जो डॉक्टर सर मास्टर told in 92 at a seminar at Chandigarh that belladonna gives 30 to 35 results in 30 to 35% cases. I had sent a slip, sir, we cannot agree with this statement. सर ने पहले सेमिनार जो 1992 में हुआ था चंडीगढ़, 5 केसेस दिखाए, 5 के 5 बेलाडोना के थे। वो भी मैंने डिसएग्री किया कि मेरे को लगता नहीं सर, ऐसे कैसे, आपने तो सभी केसेस में बेलाडोना दी है। पर जब मैंने उनका ओरिजिनल लिटरेचर स्टडी किया, वॉल्यूम फर्स्ट 2, फिर मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया, और फिर वंडरफुल रिजल्ट मिलते रहे। कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारे कहते थे आपने सभी केसेज इस पे डाल दिए हैं, आपने माइंड मेथड पे, तो आप ऐसे फेल हो जाएंगे। मैंने बोलता था नहीं, अगर फेल होंगे तो फिर ही सीखेंगे ना, फिर ही आगे बढ़ेंगे। अगर एस्केप फ्रॉम विंडो रहा कि फिर तो हम कामयाब नहीं होंगे। तो रियली बेलाडोना का को जो कैरिड जेट फास्ट रूब्रिक है, पेशेंट अक्सर ही हमें आके कहते थे कि सर होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है, इसीलिए मैं नहीं लेता था। तो मैंने बोला ना कि कॉमन लैंग्वेज को रूब्रिक में कन्वर्ट करना है, तो वो आ जाता है उसका कैरिड जेट भी फास्ट। फिर आ जाता है, हमेशा पेशेंट बोलते हैं कि आज क्यों आए हैं मेडिसिन लेने के लिए आप, कि सर किसी ने बोला वो ठीक हुआ था,
तो लॉजिक तो कोई नहीं ना, अगर वो ठीक हुआ था तो आप भी ठीक हो जाएंगे। सुपरस्टिशियस एंड क्रेडुलस आ जाता है कि जल्दी विश्वास कर लेना, और ऐसी बिना लॉजिक के बस विश्वास कर लेना। इवन जो पोलापन आता है उसमें न्याय भी आ जाता है, तीनों रूब्रिक की है। तो ये वाला बात आ जाती है कि किसी ने बोला वो ठीक हुआ था तो भी ठीक हो जाऊंगा। तो फिर आ जाता है उसका कि अगर सर कोई टेस्ट करवाना हो तो वो आ जाती है कि पेशेंट अक्सर ही कहते हैं कि मैंने, अगर कोई टेस्ट करवाना है आपने तो टेस्ट करवा लें। तो लाइट जार कभी भी किसी ने भी कहीं भी नहीं, पहले डॉक्टर एम एल सहगल सर से पहले किसी ने बोला हो कि ये लाइट डिजायर है, आप लाइट डिजायर लेना है, अगर पेशेंट टेस्ट करवाने की बात करता है तो वो लाइट डिजायर आ जाता है। इतना इजी कर दिया ना, इतना इजी कर दिया। लाफिंगली पेशेंट बोलते हैं, लेडीज पेशेंट बहुत आते हैं डॉक्टर जी के पास, तो लाफिंग स्पीकिंग बैन, स्माइलिंग स्पीकिंग बैन। ये कभी सोचा ही नहीं था कि अगर जैसे पेशेंट लाफिंगली स्माइलिंगली बोल रहा है तो हमें इसका रूब्रिक भी लेना है, और रूब्रिक है हमारी रिपोर्टरी में। कोई डॉक्टर एम एल सहगल सर ने नहीं ऐड किया, वो डेड पड़े हुए थे, मैं जैसे बोल रहा है ना, वो डेड रूब्रिक उन्होंने लाइव कर दिए। अगर लाइट डिजायर है, इसको नहीं मानते आप, तो इसको अपोजिट भी तो है ना, लाइट शन भी है। उस पेशेंट कहते हैं कि सर मैंने टेस्ट नहीं करवाना, जैसे है वैसे ही पड़ा रहने दो, मैं तो डरता हूं टेस्ट कराने से। तो वो लाइट शन आ जाता है। इतना इजी है, इतना इजी है। तो लाइट शन पे चले जाएंगे आप। ऐसे ही ऑनेस्ट है, कोई बहुत ज्यादा करप्ट है, उसके अपोजिट है कि वो ड्यूटीफुल है, कि उसमें ड्यूटी नो साइंस है। इतनी ब्यूटीफुल है ना होम्योपैथी में, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल साइंस है जी, जिसे हम अप्लाई करके इतने अच्छे रिजल्ट लेते हैं। कैलकुलस का फर्स्ट टाइम डॉक्टर एम एल सहगल अवर मास्टर applied calculus in this way कि recognize reality and accepts it। कभी भी किसी ने भी कैलकुलस ऐसे एक्सप्लेन नहीं की, जहाँ की हो तो मेरे को बता दो कि recognize reality and accepts it। और उसके साथ एंजाइटी अदर्ज फॉर केयर्स फुल ऑफ अदर्ज अबाउट आ जाता है। जैसे चलो वो तो हम पहले DHMS में जब पढ़ते थे कैलकुलस, तो आता था कि गुड नर्स, कैलकुलस मीन्स गुड नर्स। पर ये रिकॉग्नाइज करने वाला, और अगर 50 होमोपैथ हैं वो भी कैलकुलस पे ही पहुंचेंगे जब उसकी वर्डिंग ऐसी होगी कि जो नहीं चेंज किया जा सकता। उस पे गुस्सा क्या करना सर, क्रोध क्या करना, एंगर क्या करना। तो मैं तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, मैं तो बिल्कुल क्रोध नहीं करता। तो उसको मैं एक कहूंगा चार कहलाऊंगा, कहते हैं ना कि एक बात कहूंगा चार कहलाऊंगा। कहते हैं ना कि लड़ाई और लस्सी का क्या बढ़ाना है, जितनी मर्जी बढ़ा लो। ऐसी एक बात कहूंगा। आजकल के बच्चे हैं सर, वो कहाँ सुनते हैं। मैं तो कभी भी नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता। फिर हम उसको कन्फर्म कर लेते हैं कि केयर्स फुल ऑफ है अदर्स अबाउट के नहीं। अगर आप रात को बीमार हो जाए, आप किसी को उठाते हैं? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल भी नहीं उठाता जहाँ उठाती। मेरे को होता है कि ये दिन पर काम किया है इन्होंने, कल को भी करना है। तो मैं तो अपने आप धीरे धीरे उठकर पानी ले लेती हूँ, चाय ले लेती हूँ, टेबलेट ले लेती हूँ। उसमें रिकॉग्नाइज भी आ जाता है और उसकी केयर भी आ जाती है। तो कभी भी कैलकुलस नहीं फेल होती। ऐसे चलते चलते हमें आ जाती है ओपीएम आ जाती है। कितना इजी कर दिया सर ने ओपीएम का, कभी किसी ने अप्लाई नहीं किया था। फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ, पहले हम पूछते हैं कि कब से तकलीफ है, वो बोलता है कि 8 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से तकलीफ है। फिर हम पूछते हैं कोई मेडिसिन ली है आपने? नहीं सर, मैं तो कोई मेडिसिन नहीं ली। फिर आज क्यों भैया, फिर आज क्यों मेडिसिन लेने आए? अब ये बढ़ गई जी, उसकी लिमिट क्रॉस कर गई। डॉक्टर एम एल सहगल कहते उसकी एक लिमिट होती है ओपीएम वाले की, वो क्रॉस कर गई तो वो फियर एक्स्ट्रावेगेंस आ जाता है। तो कभी भी ओपीएम फेल नहीं होती फियर एक्स्ट्रावेगेंस में। पहले इंडिफरेंस टू सफरिंग, जैसे हॉयब्सन्स में अपने इंडिफरेंट कंप्लेंट आज नॉट किया, इसमें इंडिफरेंस टू सफरिंग, देन फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ। ऐसी पेशेंट खा रहा है मेडिसिन आपसे चलते 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 5 दिन, 7 दिन, 5 महीने, 7 महीने, फिर वो बोलता है कि डॉक्टर साहब इतना देर हो गई, मैं तो ठीक ही नहीं हुआ।
खाते खाते भी एक्स्ट्रावेगेंस आ जाता है, मेडिसिन खाते खाते, कि उसको लगता है कि इतनी देर हो गई, मैं वैसी मेडिसिन लेता रहा, तो भी ओपीएम काम करती है, इतना अच्छे रिजल्ट देती है, इतना वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसे ऐसी वंडरफुल साइंस है जी। और जो रेयर मेडिसिन हैं वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं, जिनको हमने वेरीफाई कर लिया। जैसे इलेप्स है, उसमें मेरी डॉक्टर इन लॉ ने, मैं पीछे छुट्टी पे था 1-2-4 दिन, तो अप्लाई की उसको। उस लेडी ने 2 पेजेस की हिस्ट्री दी। एंड में उसने बोला कि हमारे जो नजदीक है नाइबर में, वो चोर हैं, चोरी करते हैं। तो मेरे को तो सारी रात नींद नहीं आती कि जे आएंगे मेरे घर में भी चोरी करेंगे, जे आएंगे मेरे घर में भी चोरी करेंगे। कहती मैं तो, मेरे तो गई कई वेट है जो लॉस हो गया, तड़कन बांधने लग गई है। तो मेरी डॉक्टर इन लॉ ने उसको एलेप्स 30 एक डोज दी। आफ्टर 7 डेज वो लेडी आई, कहती मेरे मन में ख्याल ही नहीं आता, मेरी जो प्रॉब्लम सी सारियां वो भी ठीक हो गई, और मेरे मन में वो ख्याल ही नहीं आता कि वो चोरी कर लेंगे, कि जब आएंगे मैं देख लूंगी, कोई बात नहीं है। मतलब इतने वंडरफुल रिजल्ट हैं। उसके रूब्रिक हैं, जैसे मेरे पास लिखे हुए सामने, कंपनी डिजायर फॉर हैपन एज इफ समथिंग हॉरिबल माइट, कि बहुत भयानक कुछ ना कुछ वापर जाएगा जब मैं अकेली होंगी। तो डुलूजन राउडीज, राउडीज का 5th वॉल्यूम में एडिशन में सिंथेसिस में दिया हुआ है, ब्रैकेट में डिसऑर्डरली पर्सन, जो चोर चक्के होते हैं, चोरियां करते हैं। डिलूजन राउडीज वुड अपीयर एन इफ शी वर अलोन, कि अगर अकेली होंगी मैं, तो वो ऐसे लोग अंदर आ जाएंगे घर घर में, है ना। फियर रॉबर्स ऑफ, फियर सॉलिट्यूड ऑफ। तो ये ऐसे नहीं वंडरफुल रिजल्ट है। इसमें हम सारा कुछ छोड़ देते हैं, उसका पेशेंट का कुछ भी नहीं लेते, जो पहले हिस्ट्री ली होती है। अगर ये बात हमें मिल जाए, तो हम, कितने ही केस मेरे पास हुए हैं। एक लेडी आती थी, इतना डरती थी, खेत में घर था उनका, फार्म हाउस पे, तो कहती थी मैं तो कुंडियां लगा के, कुंडे लगा के बैठती हूँ, लाइट लगा के, कहीं कोई अंदर ना आ जाए। तो मैंने उसको इलेप्स दी। आफ्टर 7 डेज वो भी आई। कहती अगर खड़का हुआ घर के बाहर, कोठी के बाहर, मैं डांग उठाती हूँ, सोटी उठाती हूँ, और पूरा राउंड लगा देती हूँ। इतनी ब्रेवनेस आ जाती है उनमें। ये ऐसी मेडिसिन है वंडरफुल। अलमीना मैं अक्सर देता हूँ, जहाँ एक्सीडेंट्स का आता है, फियर एक्सीडेंट्स ऑफ, डिलूजन एक्सीडेंट्स ऑफ, वो आता है उसमें। तो जब पेशेंट को ऐसे लगता है ना कि मेरे को एक्सीडेंट हो जाएगा अगर मैं घर से गया, तो वो भी इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरे पास पहले एक लड़का आया था, उसका स्कूटर मैकेनिक था, वो स्कूटर की रिपेयर कर देता था, राउंड नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि उसको डर था एक्सीडेंट ना हो जाए। फियर एक्सीडेंट्स ऑफ फेटल एक्सीडेंट, डिलूजन एक्सीडेंट्स ऑफ फेटल एक्सीडेंट। ऐसे एक बुजुर्ग आया, वो कहता मैं तो दूरी में भी नहीं आता 4 किलोमीटर, मेरे को ऐसी डर होता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। बेड डिजायर टू रिमेन इन फियर एक्सीडेंट्स ऑफ अलमीना, उसमें भी बेड डिजायर में भी आती है। तो वो भी ठीक हो गया, उस ऐसी केस था। तो ऐसी चलते चलते कुछ 10 केस होंगे ऐसे मेरे जो ठीक हुए हैं अलमीना से। तो ऐसे लॉन्ग जर्नी है इसकी। हमारी बुक में जो है होम्योपैथी एंड माइंड, उसमें सभी कुछ दिया हुआ है। जिनके पास है, जिनके पास नहीं वो मंगवा सकते हैं इंडियन बुक्स एंड पीरियोडिकल पब्लिशर से, जहाँ हमारे से, तो डॉक्टर नीलम अवतार सिंह से। तो ऐसे आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? हेलो, किसी को कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो सर से डायरेक्टली। वो एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले सर का बहुत शुक्रिया, बड़ी रवानगी से, बड़े अच्छे तरीके से डेली यूज के जो केसेस हैं वो बताते हैं। लेकिन मेरा आजकल पाला पड़ा हुआ है पाकिस्तान में एक कुछ डॉक्टरों से, वो कहते हैं जी कि सैगल माइंड मेथड वर्क्स ओनली इन अक्यूट केसेस, नॉट इन क्रॉनिक केसेस। वो कहते हैं जी कि हमें प्रूफ दिखाएं कौन सा क्रॉनिक केस ठीक हुआ।
सेकंड माइंड मेथड से, तो प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू लेट मी नो सर। थैंक यू। डेफिनेटली पंजाब में ऐसे था कि एक्यूट नहीं ठीक होते, क्रॉनिक ठीक होते हैं, पर सभी ठीक होते हैं, एक्यूट भी ठीक होते हैं, क्रॉनिक भी ठीक होते हैं। और बेलाडोना से, एकोनाइट से, ऐसी मेडिसिन जैसे एलेप्स है, इसमें से, अल्मीना से, कोई भी मेडिसिन, हायोसम्स है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, क्रॉनिक तो ठीक होती होते हैं ना सिंगल डोज से। कोई भी ऐसी कोई बात ही नहीं है कि ना ठीक होए। ओके जी। कोई जो आपके आपके साथ जो केस कोई ठीक किया हो तो अगर बता दे तो थैंक यू वेरी मच, अगर कोई याद हो तो कराने की। कितने हर डिजीज को ना, रोमेटोइड आर्थराइटिस के मेरे पास कम से कम RA फैक्टर पॉजिटिव, हाई वैल्यू 80, 100, अबव 100, तो वो सारे ही ठीक होते हैं रोमेटोइड आर्थराइटिस वाले। कभी भी फेलर नहीं मिली मेरे को। तो आस्थमेटिक केसेज हैं, मेंटल केसेज हैं, सर्जिकल नेजल पॉलिपस है, हेमोरेज, पाइल्ज है, कॉर्न जो है फुट पे, सोल पे। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कैसे रीनल स्टोन जो है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का तो मेरा बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ठीक करने का, कि कैथीटर भी अगर डाला हुआ था, सर्जरी टेबल, सर्जरी के लिए एडमिट हुआ था, किसी ने बोल दिया कि डॉक्टर मान के पास चले जाओ, वो आ जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। इतने ज्यादा ठीक हुए हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के, रीनल स्टोन के, पाइल्ज के, नेजल पॉलिपस के, रोमेटोइड आर्थराइटिस के, थैंक यू वेरी अस्थमा। मच सर। अब आपको याद आना शुरू हो गया ना, ये होता है ना सर, आपके पास है एक इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज है, तो आपको भी याद नहीं रहता क्या क्या केस ठीक हुए। अब आपको भी याद आना शुरू हो गया कि प्रोस्टेट के कोई केस भी ऑलमोस्ट नो फेलियर मेट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मेंटल डिजीज के तो मेरे पास इतने आते हैं ना, डिप्रेशन, मैनिया, OCD, ते हिस्टीरिकल केसेज गर्ल्स के, तो इवन सम केसेज ऑफ सिजोफ्रेनिया, इतने केसेज आते हैं। उनको मेरी इतनी पकड़ है ना निकालने की मेंटल केसेज को। तो बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ओके जी। तो सर जी मेरे प्लेटफॉर्म पे मुझे पास एक छोटी सी गुजारिश है, मैं आपसे रब्ता कर लूंगा, एक टाइम मुझे भी दे दीजिएगा, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ओके, भी इसी ठीक इंडिया है। भी शामिल होगा ना जी, एक लेक्चर हाँ वो भी। जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, ओके ओके। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, डॉक्टर नमोलेस लियाकत सर, डॉक्टर मानसी। जी सर। तो क्लोज करें सेशन को। एक्सक्यूज मी, सर एक्सक्यूज मी, रूब्रिक क्या था जिसमें टेस्ट से डरता है पेशेंट? किससे डरता है जी? लाइट टेस्ट कर लाइट शंस। लाइट शंस। लाइट Yeah. एवर्जन टू शंस ऐसा रूब्रिक है। एक्सक्यूज मी। पेशेंट्स हैं ना, तो उनको एक फेथ बन जाता है, वो छोड़ते नहीं है, वो डेफिनेटली आपको टाइम देंगे। ओके और फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन, सेकंड, थर्ड, कोई तो शूट कर देगी ना। ओके जरूरी नहीं, मैं और एक कहता हूँ कि सलाह मैं मेरी ऐसी है, सभी केसेज फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन तो मैं कहता हूँ 50% केसेज फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन पे निकलते हैं। पर उनको रश Exactly. देख के ना, चाहे मेरा प्राइवेट क्लिनिक है अब, तो उनको फेथ आ जाता है एक, मतलब Yes. ओके सर। दैट Dr. पेज Neha, अस। you start और recording every case. सोशली मूव करना इतना ज्यादा, वो भी पे करता है हमें, है ना। हाँ जी, हाँ जी, Exactly. मेरे ओके। पास फोन Dr. आते हैं कि Neha, आपका you प्रमोशन करें, हाँ आपके क्लिनिक का प्रमोशन करें। मैं कहता हूँ भैया, जेडे मेरे पास ऑलरेडी पेशेंट है वही मैं मसा देख सकता हूँ, मेरे को हाँ जी, प्रमोशन की okay. जरूरत नहीं है। हाँ जी सर, हाँ जी, Dr. Neha, start recording every case. हाँ Okay. जी सर, So ओके you can see the case again better. ओके, है ना? So what हाँ you जी, missed and all, then you will come to know, Neha. What you should ओके do ओके is see your case again and again. है ना? ओके। Striking matlab, it is not like something that patient is going to tell you कि this is important. You हाँ will नहीं come to सर, know वो the तो rubrics. ऑब्जर्व करना पड़ता है। हाँ जी सर, हाँ, हाँ ये जी, ध्यान रखो बेटा, आप सिर्फ रिकॉर्ड करना शुरू करो तो आपको बार बार आप देखोगी तो आपको स्ट्राइक होगा बेटा, जरूर होगा। ओके ये ओके हमको इनिशियल डेज में हमको ये प्रॉब्लम होता था, लेकिन हाँ जी, इससे हम सब गुजर चुके हैं।
और हाँ जी, जिससे हाँ जा जी। रही है ना, इंसिडेंट हम से गुजर चुके हैं, लेकिन वो 20-25 साल पहले it used to happen to us when we started ओके the practice. It used to happen better, but what we started is we started recording the cases and see them again. You'll come to know. ओके और सर, दूसरी थैंक बात, यू सर। नीचे लिखते बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. Your eyes should be on the patient. यस सर, If you यस सर, start writing, looking down, then things will disappear from your vision also. यस। ओके है ना? सर, थैंक यू सर। अगर आपके Yes. पास Any more नंबर ऑफ question? पेशेंट कम है ना, किसी के पास गवर्नमेंट डिस्पेंसरी नहीं मिलती, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो हमने अपने लेवल पे रिलीजियस प्लेस में होम्योपैथिक डिस्पेंसरी चैरिटेबल बेस पे शुरू की है। Exactly. इसी समय मैंने 96 में ₹10 पे सर शुरू करवाई थी पर वीक। वो जो कलेक्शन है वो डॉक्टर की सैलरी होगी। फिर 20, 30, 40 या 50 रुपीज पे चले गए हैं कि 50 रुपीज कंसल्टेशन और मेडिसिन देनी है फ्री उसको। 150, 200 पेशेंट आने से पता नहीं कितनी कलेक्शन हो जाती है। डॉक्टर नीलम अवतार सिंह इतने सीनियर डॉक्टर हैं हमारे, वो उनको जुंट को नहीं छोड़ते, 1 से वीक जो जाते हैं वो। ऐसी So 10-12 nice. डॉक्टर जो हमारे हो रहे हैं जो 1 से वीक जाते हैं। कितना अच्छा है. काम भी होता है, सोशल वर्क भी होता है, और सोशल होम्योपैथी का वर्क भी हो प्रचार भी जाता है। होता हाँ जी, हाँ जी। है. मेरा बेटा भी सब जाता चीज है ऐसी, कीमा मंडी माशाल्लाह. गुरुद्वारा है वहाँ, वहाँ जाता है वो 2 दिन। वहाँ उसके पास एक दिन में 70-80 पेशेंट आ जाते हैं, बहुत सारे 15 डेज की मेडिसिन ले जाते हैं। माशाल्लाह. So nice. So nice. So nice. ठीक है सर, ओके जी। जी सर, जी सर. जी 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 जी. मानसी बेटा, थैंक्स गिविंग. डॉक्टर मानसी, आर यू देयर? Yes, sir. Yes. यस. Thank you, sir. Thank you. It was very wonderful and practical session. So thank you so much. इतना As always. सिंप्लिसिटी से आपने होम्योपैथी पढ़ाते हैं आप, तो ऐसा लगता है कि आपको सुनते ही जाए, केसेस ये बंद ना हो। इतना अच्छा, मतलब हायोस और ओपियम इलैप्स जो भी है, ऐसा लगा ही नहीं कि कोई डिफिकल्ट है इसमें। तो बहुत अच्छा, बहुत वंडरफुल था। थैंक यू लियाकत सर, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू नीलम मैडम, मनोज सर, दिलीप जानी सर, वो लोग भी आज ज्वाइन किए हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और यूट्यूब पे आएगा ये, जिन्होंने मिस किया है, आपके फ्रेंड्स हो तो आप वापस देख सकते हैं। और बार बार देखने से ये और भी हेल्पफुल हो जाएगा प्रैक्टिस में। सो यू कैन Exactly. वॉच इट ऑन यूट्यूब। थैंक यू। Yeah. ओके One जी, more ओके। thing, we are coming up with the 100th lecture of the Guruji ke Saath Guruvar, which will be on 28th of July. Dr. Saigal and many more stalwarts will be there, also there in that. It will be inshallah whole day long. On 20th July, last Sunday of July, we will be having the 100th lecture of our Guruji ke Saath Guruvar. So stay tuned for that. We will be spreading the link and everything very soon. Thank you, Mansar. Thank you, Mansi. Thank you, ओके, my थैंक brothers, यू जी, थैंक यू। Manoj, and thank you so much, Mansar. आपको सवेरे फोन किया और आपने तुरंत एक्सेप्ट किया. इस दिन के लिए आपसे अच्छा कोई भी हमारे मन में, किसी भी डॉक्टर के हमारे मन में थॉट भी आया है सर. मैं मानसी को बोला कि आप सर को कांटेक्ट करो, मुझे पता है सर ना नहीं कहेंगे. और मेरी गलती के लिए माफ कर देना सर, आपको मैं लास्ट मोमेंट पे तकलीफ देता हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं ये भी सताता हूँ आपको. Thank you very much. Thank you. Thank you. Me phone karna. Thank you, doctors. Thank you. God bless. See you. Hail Hanuman. Hail Omviti.